Hello students, welcome back to our online class with Best English School. Today in this video we would like to start our semester 2 part students, okay, in social science subject. So students, in your screen right now you can see that I have opened the page where the index have been shown up. So you should have to purchase this one, and these all 14 chapters would be included in your syllabus of semester 2 students, okay. So I hope that you will purchase it and you will start learning because your vacation is now completed students, right? So see, I really wanted to look at you this one. You have to purchase this book. You can see in this one, okay. Gujarat Council of Educational Research and Training, Gujarat State Board of School textbooks. So you should have to purchase this one. Then these are the pages. They are the fundamental duties about this, and then this one is your index, okay students. So this one is the semester 2 part index. So they are all over 14 chapters, so you should have to look this one, okay students. You have to purchase textbook also and you have to purchase workbook also. Both are in the separate way, okay students. So these chapter would be included in your textbook and in your workbook. Now let's begin our first chapter, that is socio-religious reforms. So we all know that SS is having a very interesting chapter if we will listen it very carefully, while if we will not be able to understand it if we will not listen it carefully, right students. So our first chapter is all about the independent, fearless personalities we will talk in this chapter students. So what had happened in the 19th century and how the socio-religious reforms have been occurred, we will discuss it in this video students. So this chapter would be divided into two parts. So in this video we will discuss it part 1, and in the later on we will discuss the part 2 students, okay. So let's begin. Socio-religious reforms. In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstition, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. The condition of women was worst in this narrow-minded society. Various evil customs were widespread in our society, like the customs of dudh piti, female infanticide by immersing a newborn child into a container full of milk, sati system, burning of a woman on her husband's funeral pyre, denial of widow remarriage, etc. Due to the Western education, a new awakening renaissance began in the 19th century to remove the evil customs from the society. Intensive efforts were made to bring in social and religious reforms. Raja Ram Mohan Roy was the first among such reformers. So students, 19th सेंचुरी में हमारे इंडियन सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे इवल कस्टम्स थे, ख़राब कस्टम्स थे, सुपरस्टिशंस थे, मतलब अंधविश्वास थे, इलिटरेसी मतलब अनपढ़ लोग, बिना पढ़े लिखे लोग, एरोगेंट लोग, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ थे, कास्ट इशू, कास्टिज़म, ये सब चीज़ें बहुत सारी थे. और उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो, मतलब सबसे ज़्यादा ख़राब से ख़राब वुमेन के साथ ही होता था, औरतों के साथ ही होता था. जैसे कि इवल कस्टम्स थे जिसमें दूध पीती एक सबसे बड़ा कस्टम था कि बाई चांस कोई बेबी गर्ल बॉर्न हुई हो तो उसको पूरा का पूरा जो कंटेनर होता है दूध का भरा हुआ उसमें उसके डुबा के मार देते थे. दूसरा एक ख़राब कस्टम्स था, वो था सती सिस्टम, जिसमें सोच लो कि जो वुमेन है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई होती है तो हस्बैंड के फ्यूनरल के उसी टाइम वो वुमेन को भी जला देते हैं, बर्न कर देते हैं. थर्ड वन इज़ वीडो रीमैरिज. जो औरत वीडो हो जाती है उसके फिर से मैरिज करना नहीं बोलते हैं, दैट इज़ नॉट सो गुड, इलीगल, उस टाइम में ऐसा माना जाता था.
तो उस टाइम में ऐसा हुआ कि वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, मतलब जो बाहरी एजुकेशन के थ्रू, एक न्यू अवेकनिंग मीन्स जागरूकता, एक न्यू नॉलेजेबल स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी में, जिसमें ये जितने भी इविल कस्टम्स थे सोसाइटी के वो सबको रिमूव कर दिया जाए, उसको हटाया जाए। तो इसमें सबसे बड़ा मेन जो रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की थी वो थे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने सबसे पहले ये इविल कस्टम्स को डिस्ट्रॉय करने का स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स। सो नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट द राजा राम मोहन रॉय. So Raja Ram Mohan Roy was born in the year 1772 CE in the Hooghly district of Bengal in Radhanagar village in a Brahmin family. और राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, मतलब चाइल्डहुड में ही, छोटी सी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी. सो उनके जो ब्रदर की वाइफ थी दे बिकम सती बिकॉज ऑन हर हस्बैंड्स डेथ, मतलब उनके जो ब्रदर की मृत्यु हो गई थी तो उनकी जो वाइफ थी वो सती हो गई थी. तो जब वो इंसिडेंट राजा राम मोहन रॉय के साथ हुआ, क्योंकि सती हो गए मतलब उनको जला दिया जाएगा उनके हस्बैंड के फ्यूनरल के टाइम में, तो वो जो इम्पैक्ट था वो राजा राम मोहन रॉय के मन में बहुत ज़्यादा डीपली स्टोर हो गया था. तो उन्होंने ये सारे इविल कस्टम्स थे उनकी अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने लगे, स्ट्रॉन्गली प्रोटेस्ट किया, जैसे कि चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड, कास्टिज़म के रिलेटेड, दूध पीती और ऐसे बहुत सारे इविल कस्टम्स के रिलेटेड. उन्होंने एक बंगाली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिनका नाम था संवाद कौमुदी, जो कौन से ईयर में 1821 CE के टाइम में, और उसी टाइम पर्शियन लैंग्वेज में भी उन्होंने स्टार्ट किया था 1822 CE में, जिसका नाम था मिरत उल अकबर. अब फिर उन्होंने 1828 CE में ब्रह्मो समाज उन्होंने इस्टेब्लिश किया. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन द सेकेंड सेमेस्टर आपके बहुत सारे डेट्स होंगे, सो यू शुड हैव टू रिमेंबर द डेट्स बिकॉज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड you should have to store it and write it in your notebook also. So there would be question, then when, in which year did the Brahmo Samaj was established? So the answer would be 1828 CE. Now राजा राम मोहन रॉय ने एक हिंदू कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया था कोलकाता में. ओके, so now he recommended many changes to the British government like the independence of press, freedom of speech, women rights, personal liberty, judicially independent from executive etc. तो राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सारे चेंजेस ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा, जैसे कि जो प्रेस होते हैं, मीडिया होते हैं, उनके इंडिपेंडेंस, वो खुद के मर्ज़ी से लिख सकते हैं, आप कभी भी कुछ भी बोल सकते हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेंस के राइट्स के रिलेटेड, अधिकार के रिलेटेड, और ऐसे बहुत सारी इंडिपेंडेंट, जुडिशली इंडिपेंडेंट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उन्होंने चेंजेस करवाई विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट. देन राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू एबॉलिश द सती प्रथा. उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए. देन ये लॉ फॉर्म किया गया, ये सती प्रथा बैन हो गया, ये फॉर्म लॉ किया गया 1829 CE में, जिसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वो लॉ पास किया जिसमें सती प्रथा बैंड किया गया है. किन्होंने सती प्रथा बैंड किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने बैंड कर दिया. उसके बाद Raja Ram Mohan Roy led the foundation of Indian Renaissance, which regards to initially social, religious and political reforms. तो राजा राम मोहन रॉय ने एक फाउंडेशन बैठाया जिसमें उन्होंने इंडियन रिनेनेंस मतलब न्यू अवेकनिंग, जागरूकता के लिए उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी उन्होंने स्टार्ट किया था. The Emperor of Delhi sent Raja Ram Mohan Roy to England in the year 1830 CE in regards to his case of right to property. Raja Ram Mohan Roy died in Bristol in the year 1833 CE. Brahmo Samaj played a vital role in reforming the contemporary Hindu Samaj. Brahmo Samaj tried to abolish the rigid and superstitious religious beliefs prevalent then. सो स्टूडेंट्स, राजा राम मोहन रॉय फिर इंग्लैंड चले गए थे 1830 में, और उनके जो भी राइट ऑफ प्रॉपर्टीज़ थे वो सारे उनके साथ थे.
देन राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई थी ब्रिस्टल में 1833 में। तो ब्रह्मो समाज ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने हिंदू समाज के ऊपर रखा कि जो भी इविल कस्टम्स है, जो भी सुपरस्टिशंस है, वो सबको एबॉलिश करो, सबको ख़त्म करो। दैट इज़ रॉन्ग। सब चीज़ें जो भी इविल कस्टम्स थे वो सब चीज़ें को बैंड किया, एंड दैट इज़ हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल between this all ban abolish the customs, that would be Raja Ram Mohan Roy. With the help of the Raja Ram Mohan Roy, the evil customs was destroyed, students. Okay, now we will discuss about the Dayanand Saraswati. They are having a very important role on this our customs also. So Dayanand Saraswati was born in a Brahmin family in Tankara village near Morbi in Saurashtra. In his early childhood, he realized that the idol worshipping and religious rituals were worthless. He renounced his family and the world in search of truth. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. He studied a sannyasi, that is an ascetic recluse, and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virajanand Dandisha in Mathura. So students, उन्होंने बहुत अर्ली, जब वो बचपन थे, बहुत अर्ली चाइल्डहुड के टाइम में उन्होंने ये जो वर्शिपिंग और जो रिचुअल्स थे, जो रिलीजियस, वो सब में वो मानते ही नहीं थे। तो वो अपने घर परिवार को छोड़ के सच्चाई की राह को, मतलब सच को ढूंढने के लिए वो अपने घर परिवार को छोड़ दिया था उन्होंने। और लास्ट 15 साल तक वो ट्रैवलिंग किए पूरे इंडिया में, और उन्होंने योगा के बारे में भी स्टडी की, और वो सन्यासी बन गए थे। फिर उन्होंने बहुत सारे हिंदुइज़्म और की बारे में स्टडी की, और उन्होंने स्वामी विराजानंद दंदीशा इन मथुरा स्टार्टेड, उन्होंने वहाँ पे उनके साथ स्टडी की, किसके बारे में, फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज़्म के बारे में स्टूडेंट्स। ओके, नाउ Swami Dayanand Saraswati made an attempt to achieve national unity by advocating a classless and casteless society. तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अटैम्प्ट स्टार्ट किया कि जिसमें कोई भी क्लास नहीं होगा, क्लासलेस होंगे, और कोई भी कास्टिज़म नहीं होगा, वो सोसाइटी में उन सबको वो पढ़ाएंगे। He acquired a deep insight into the Indian custom and religious through Vedas. वेदास के थ्रू उन्होंने बहुत सारे डीप इंसाइट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेबल चीज़ें पढ़ाई। उन्होंने बोला गो बैक टू द वेदास, उनके जो स्लोगन आप बोल सकते हो, वो स्लोगन थे गो बैक टू द वेदास। हम लोग के जो वेदास है वो वेदास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने बोला कि वेदास को आप लोग पढ़ो और ज़्यादा बारे में नॉलेज मिलेगी। और उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था सत्यांत प्रकाश करके वो बुक उन्होंने लिखा। He made people aware that in the Vedas there is no mention about the evil customs such as idol worship, ritual, child marriage, sati pratha and untouchability. तो उन्होंने ये सारे लोगों को बताया कि हमारे जो वेदास है उसमें ये सब चीज़ें लिखी ही नहीं हुई है। इवल कस्टम, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब चीज़ें खराब चीज़ें हैं। वेदास में भी ये सब बारे में नहीं लिखा गया है। He advocated monotheism, that is there is only one God. उन्होंने क्या पढ़ाया, उन्होंने ये बोला है कि सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही गॉड है। So he preached in Hindi and as a result his thoughts reached the maximum number of people in the country. तो वो जो लोग को पढ़ाते थे, वो जो अपनी शिक्षा देते थे, वो इस तरह से देते देते बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम लोगों के थ्रू उन्होंने ये बात अपने उनके दिमाग में बैठाई और वो बहुत पॉपुलर हो गए। उन्होंने फिर आर्य समाज स्टैब्लिश किया 1875 में, जहाँ कहाँ पे स्टैब्लिश किया, लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में उन्होंने आर्य समाज स्टैब्लिश किया। So consequently social changes occurred rapidly. So socialist changes continuously change होने लगा। आर्य समाज ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें हिंदुइज़्म को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे थे।
जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिलीजन्स के रिलेटेड चेंज कर दी, जैसे कि फोर्सफुली कुछ करने का, वो उनकी चॉइस होनी चाहिए कि वो जो चाहते हैं वो करें, और ओरिजिनल सच्चाई की राह में चलने का, कभी भी फेक नहीं होने का। After the death of Swami Dayanand Saraswati, the activities of this organization were continued by leaders like Lala Hansraj, Pandit Gurudutt and Lala Lajpat Rai. जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई, उसके बाद ये तीनों लीडर्स ने ही उनके आर्य समाज को आगे बढ़ाया। देन 1902 सीई को कांगड़ी गुरुकुल इस्टेब्लिश किया गया था हरिद्वार में, किसके थ्रू? स्वामी श्रद्धानंद के थ्रू। आर्य कन्या महाविद्यालय was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values. So students, वहाँ पे कन्या महाविद्यालय स्टार्ट किया, जिसमें वो बताते थे, डिसिप्लिन सिखाया जाता था, शांति, पेशेंस कैसे रख सकते, और जो सबसे ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ है वो सब के बारे में बताया गया स्टूडेंट्स। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट रामकृष्ण परमहंस। Ramakrishna Paramhans was the torch bearer of the Indian culture. He was also a reformer and saint who had sought the truth through all the religions. He was born in Kamarpukur village of Hooghly district in Bengal. He took interest in the religious activities from his childhood. He became a priest in the Kali temple of Dakshineshwar near Kolkata. Many people were attracted towards him due to his preaching on purity of character and deep knowledge. He tried to attain God in various forms. Many religious reforms like Keshav Chandra Sen, Dayanand Saraswati and others had obtained guidance from him. Those influenced by the Western culture redeveloped their faith in culture and religion of India because of the preachings of Ramakrishna Paramhans. सो स्टूडेंट्स, रामकृष्ण परमहंस एक इंडियन कल्चर के लिए एक टॉर्च बियरर थे, मतलब एक अंधेरा को जिस तरह गायब कर देते वैसे वो टॉर्च की तरह वो थे। वो बहुत बड़े संत थे और वो सच्चाई, रिलीजियस की जो सच्ची चीज़ें हैं उन्हीं पे वो अमल करते थे। उनका जन्म कामारपुकुर विलेज, हुगली डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में हुआ था। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे चाइल्डहुड में से, बचपन में से ही। और वो काली मंदिर जो दक्षिणेश्वर के वहाँ पे है कोलकाता में, वहाँ पे वो प्रीस्ट थे। प्रीस्ट मतलब पंडित। वैसे देखें तो उनसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो सच्चाई थी, उनकी जो प्योरिटी थी, उनकी जो नॉलेज था वो चीज़ का, वो बहुत अद्भुत था, वो बहुत डिफरेंट था लोगों से। तो उनसे बहुत सारे लोग सीखे, उनके पास आए थे, जैसे कि केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनसे गाइडेंस ली है और उन्होंने उनकी हेल्प भी की है। तो ऐसे देखें तो बहुत सारे लोग वेस्टर्न कल्चर्स में इन्फ्लुएंस थे। उस टाइम में वेस्टर्न कल्चर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर में हो रहे थे, बट तब भी वो अपने फेथ, अपने कल्चर में, अपने रिलीजन्स में वो थे, और वो बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग्स ऑफ रामकृष्ण परमहंस, क्योंकि जो परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो चीज़ें बोलते थे वो अपने कल्चर, अपने रिलीजन्स के रिलेटेड बोलते थे, एंड दैट वाज अ वेरी गुड preaching style of Ramakrishna Paramhans students. So see, you can see in this picture Ramakrishna Paramhans students, ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने बात की students. Okay, so students, in this video I will left it out up to Ramakrishna Paramhans. In the later next video we will discuss about the Swami Vivekanand. So we will start from the Swami Vivekanand ji. Okay students, so till there in part 1, this one is up to here. In the next video we will do the part 2 started from Swami Vivekanand. Okay students, till there I will see you in the next video. So wait for me, and you wanted to learn more and more, so catch in touch students. So till there, bye bye and have a nice day students.